بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا فتاح يا فتاح سلسلۃ فہم القرآن الکریم، قرآن کریم سمجھنے کا ایک سلسلہ اور سیریز، العربیۃ الاساسیہ للفتیۃ والفتیات، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے بنیادی عربی کورس۔ اس کا پہلا سبق ہے اسماء الاشارہ۔ اسماء اسم کی جمع ہے۔ اشارہ کا معنی اشارہ کرنا، یعنی وہ اسماء جو کسی چیز کی جانب اشارہ کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہم قریبی چیز کی جانب استعمال کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ، اور دور والی چیز کی جانب جب ہم اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ، اس کے لیے اسماء اشارہ۔ اب یہ اور وہ، یہ اسماء اشارہ ہے۔ عربی میں بھی ایسے ہی کچھ اسماء اشارہ قریب کے لیے آتے ہیں اور کچھ بعید کے لیے، دور کے لیے آتے ہیں۔ قریب کے لیے جیسے ھذا، یہ، اور بعید کے لیے جیسے ذاکا یا ذالکا، وہ۔ ذاکا اور ذالکا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، البتہ ان کے لکھنے کا فرق آپ دیکھ لیں۔ ذاکا اس میں الف آتا ہے اور ذالکا میں الف استعمال نہیں ہوتا، صرف الف پڑھا تو جاتا ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتا، لام لکھا جاتا ہے۔ ھذا یہ، ذاکا یا ذالکا وہ۔ اب ھذا کی مؤنث ھذہ، اور ذاکا یا ذالکا کی مؤنث تلکا۔ یہ اسماء اشارہ وہ ہیں جو مفرد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ مفرد اگر مذکر ہو تو ھذا اور ذاکا یا ذالکا استعمال ہوتے ہیں، اور اگر وہ مفرد مؤنث ہو تو ھذہ یا تلکا استعمال ہوتے ہیں۔ استخدام ھذا و ذاکا، ھذا اور ذاکا کا استعمال، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک ھذا اور ایک کتاب۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ کے لیے ھذا گیا، کتاب کے لیے کتاب، اور باقی جو اردو میں ہے کا معنی آتا ہے یا ہے وغیرہ، تو اس کے لیے عربی میں کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے، نسبتی معنی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا مقعد، یہ سیٹ ہے۔ ھذا مکتب، یہ تپائی ہے۔ ھذا مدرس، یہ ٹیچر ہے۔ ذاک کرسی، وہ کرسی ہے۔ ذاک طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ ذاک مریض، وہ مریض ہے، بیمار ہے۔ ذاک سریر، وہ چارپائی یا بیڈ ہے۔ ذاک دوا، وہ دوائی ہے۔ اب ذاکا کی جگہ ذالکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں تقریباً۔ مؤنث کی پہچان، ہم نے پڑھا کہ ھذا کی مؤنث ھذہ آتا ہے اور ذاکا یا ذالکا کی مؤنث تلکا آتا ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اسم وہ مذکر ہے یا کون سا اسم وہ مؤنث ہے؟ اس کی پہچان کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کلمہ کے آخر میں گول تا ہے یا نہیں۔ گول تا جو لکھنے میں گول ہوتی ہے، جیسے عالمہ،
आलिमा यानी आलिमतुन, आलिमा। तो अब ये इस्म आलिमा मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। अगर गोलता होगी तो वो मुअन्नस, अगर आखिर में गोलता ना हो तो वो मुजक्कर। ये मुख्तसर सी पहचान है मुअन्नस की, ताकि हमें हाजा और हाजिही इस्तेमाल करना आए, ताकि हमें जाका, जालिका और तिलका इस्तेमाल करना है। इस्तिख्दाम हाजिही व तिलका। अब मुअन्नस कलिमात, मुअन्नस अस्माए इशारा इस्तेमाल करना, हाजिही और तिलका को इस्तेमाल करना। जैसे हाजिही कुर्रासा, ये कॉपी है। आप देखें कुर्रासा ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। हाजिही मकतबा, ये लाइब्रेरी है। मकतबा के आखिर में गोलता है, ये मुअन्नस है, इसलिए हाजा के बजाय हाजिही इस्तेमाल हुआ। हाजिही नाफिजा, ये खिड़की है। नाफिजा के आखिर में गोलता है, इसलिए हाजिही लाए, हाजा नहीं। हाजिही मसाहा, ये बोर्ड साफ करने वाला डस्टर है। मसाहा के आखिर में गोलता है, ये मुअन्नस हुआ, लिहाजा इसके लिए हाजिही लाएंगे, हाजा नहीं आएगा। हाजिही खरीता, ये नक्शा है। खरीता के आखिर में गोलता है, इसलिए हाजिही इस्तेमाल हुआ, हाजा नहीं। तिल का मिस्तरा, ये पैमाना है या ये स्केल है। मिस्तरा के आखिर में भी गोलता है, इसलिए जाका या जालिका के बजाय तिल का इस्तेमाल हुआ। तिल का सबूरा, ये बोर्ड है या ये तख्ता सियाह है। सबूरा के आखिर में गोलता, इसलिए तिल का लाए, जाका या जालिका नहीं। तिल का हकीबा, वो बैग है। हकीबा माने बैग, बस्ता। हकीबा के आखिर में गोलता है, इसलिए तिल का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये मुन्नस है। तिल का मिबरात या तिल का बर्राजा, वो शार्पनर है, वो पेंसिल तराश है। मिबरात या बर्राजा के आखिर में गोलता है, इसलिए इसके लिए तिल का इस्तेमाल हुआ। शार्पनर के ये दो नाम है, मिबरात या बर्राजा। तिल का गुरफा या तिल का हुजरा, वो कमरा है। गुरफा और हुजरा के आखिर में गोलता है, इसलिए इसके लिए तिल का इस्तेमाल हुआ, राका या जाली का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब कुछ मशकें हैं, तदरीबात हैं। इमला इल फराग, इमला का माना पुर करें। अल फराग फारिग जगह, खाली जगह, खाली जगह पुर कीजिए। ये इमला सीगा मुजक्कर के लिए है। अगर मुअन्नस के लिए बनाना हो तो लाम के बाद यानी हमजा के बाद, लाम के बाद जो हमजा है उस हमजा के बाद ये लगा देंगे, इमलाई अल फराग। आप पुर कीजिए खाली जगह को। हाजा, अब आपने लगाना है कि हाजा के साथ कौन सा लफ्ज लग सकता है। हाजा के साथ किताब लग सकता है या कुर्रासा लग सकता है, या इस तरह और कौन से अल्फाज लग सकते हैं। अब मिरवाहा, पहले हम जुमले का पहला जुज लाए, दूसरा खत्म किया, खाली जगह दी। दूसरी मिसाल में जुमले का पहला जुज हटा दिया और दूसरा जुज लाए, ताकि आप पहला जुज लगाना भी सीखें कि यहां पर हाजा लगेगा, हाजी ही लगेगा, या जाका लगेगा, या तिल का लगेगा। जाका नज्म, हाजी ही, यह आपने खाली जगह खुद पुर करनी है। सिल, सिल का माना मिलाएं। ये मुजक्कर का सीगा है। मुन्नस का लाना हो तो लाम के बाद ये बढ़ा देंगे, सिली। बैन अल काइमती अलिफ वल काइमा बा, कालम अलिफ और कालम बा को मिलाएं। तिल का, हादा,
ज़ाका, हाजा, कलम, नज्म, किताब, ताइरा। अब आपको पता है कि कौन सी चीजें दूर होती हैं, कौन सी करीब होती है। मिसाल के तौर पे ताइरा जहाज है, दूर होता है या करीब होता है। किताब है, करीब होती है या दूर होती है उमूमन। कलम करीब होता है या दूर होता है। नज्म सितारा है, दूर होता है या करीब होता है। इससे आपने अंदाजा करके खुद यहां से लगाना है। और मुजक्कर और मुन्नस का भी फर्क रखना है। करीब और बाईद का भी, मुजक्कर और मुन्नस दोनों का फर्क रखना है। यह आपने मश्क खुद हल करनी है। मय्यिज़, तमयीज कीजिए बैन अल मुज़क्कर वल मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान। मय्यिज़ ये मुज़क्कर का सीगा है, तमयीज करना, जुदा जुदा करना। मुअन्नस के लिए मय्यिज़ी, आखिर में ये लगाएंगे। अब आपने अलग अलग करनी है, दो फहरिस्तें बनानी है। पहले खाने में आपने मुज़क्कर लिखने हैं सारे, और दूसरे खाने में आपने मुअन्नस लिखने हैं। मैं सारे पढ़ देता हूं एक बार। जवाल, मोबाइल। रिसाला, खत या मैसेज। इफ्ताह, चाबी। शबका, इंटरनेट या जाल, जो जाल कहीं फेंकते हैं उसे भी शबका कहा जाता है। नेट भी एक किस्म का, इंटरनेट भी शबका ही होता है। हासूब, कंप्यूटर। मिलफ, फाइल। इዕदाद, सेटिंग। किरतास, कागज। तज़किरा, टिकट। जो टिकट हमें गाड़ी वगैरह में मिलता है उसे तज़किरा कहते हैं। टिकट दो तरह के होते हैं, एक वो टिकट जो हमें गाड़ी वगैरह में काट कर दिया जाता है, और एक वो टिकट जो हम किसी चीज पर चिपकाते हैं, जैसे खत वगैरह पे चिपकाते हैं, खत के लिफाफे पे, उसको ताबिअ कहते हैं। और जो टिकट हमें पैसों के बदले काट कर दिया जाता है, चाहे वो गाड़ी में हो या कहीं पार्क वगैरह में जाने के लिए हो, तो उसे तज़किरा कहते हैं। कूब, कप। सहन, प्लेट। शरीका, कंपनी। तिलमीजा, शागिर्दा। हारिस, चौकीदार, गार्ड। अब आपने यहां पर जो मुज़क्कर अल्फाज हैं, यानी जिनके आखिर में गोलता नहीं है, और जो मुअन्नस अल्फाज हैं जिनके आखिर में गोलता है, उनको आपने अलग अलग करना है। अल इस्तिफहाम, इस्तिफहाम का माना होता है सवाल करना, कुछ पूछना। किसी चीज के बारे में सवाल करना हो तो माँ को इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी शख्स के बारे में सवाल करना हो तो मन को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मा हादा, ये क्या है। जवाब मिलेगा हादा कलम, ये कलम है, ये पेन है। अब ये कलम एक चीज है, उसके बारे में पूछना था तो माँ के जरिए सवाल हुआ। अगर किसी शख्स के बारे में पूछना हो तो यूं पूछा जाएगा मन हादा, ये कौन है। ये क्या नहीं बल्कि ये कौन है। हादा मुदर्रिस, ये टीचर है। माँ और मन का इस्तेमाल, इसे जहन में रखें। इस्तिखदाम मा व मन, माँ और मन का इस्तेमाल। मा हादा, ये क्या है। हादा फिराश, ये बिस्तर है। मन हादा, ये कौन है। हादा उस्ताज, ये उस्ताज है। मा हाजिही, अब यहां पर मुन्नस चीज है इसलिए हाजिही इस्तेमाल हुआ। ये क्या है। हादिही मिरआत, ये आईना है। मन हादिही, ये कौन है। हादिही तबीबा, ये लेडी डॉक्टर है। मा जाका, वो क्या है। जाका कल्ब, वो कुत्ता है। मन जाका, वो कौन है। वो कौन है। जाका तिलमीज, वो शागिर्द है या वो तालिब है। मा तिलका, अब तिल का मुन्नस है, वो क्या है। तिल का फराशा, तिल का फराशा, वो तितली है।
من तिलका, वो कौन है, तिलका मुमर्रिदा, वो नर्स है। इसका इस्तेमाल आपने सीखना है कि माँ कहाँ इस्तेमाल करना है और मन कहाँ इस्तेमाल करना है। अजीब अनिल असइला, अजीब जवाब दे, अनिल असइला सवालात के, असइला सुआल की जमा है। अजीब अगर इसकी मुन्नस बनानी हो तो अजीबी, दो ये लगेंगे, एक जीम के बाद एक बे के बाद, अजीबी। मा हादा, मन हादा, मन तिलका, मा दाका, मा तिलका, मा हादिही, मन दाका, मन हाजिही। अब यहां पर आपने एक तो मा और मन का फर्क मलहूज़े खातिर रखना है जवाब देने में, दूसरा मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क मलहूज़े खातिर रखना है। अल अमसिलतुल कुरआनिया, कुरआनी मिसालें, ताकि आपको पता चले कि अस्माए इशारा कुरान करीम में किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। ये चंद अमसिला हमने दी हैं। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है। हादा बयानुन लिन्नास, ये बयान और वजाहत है, लिन्नास लोगों के लिए। हादा रब्बी, ये मेरा रब है। हादा अकबर, ये सबसे बड़ा है। हादा शैउन अजीब, ये अजीब शय है, ये अजीब चीज है। देखें कितना आसान है अरबी, तकरीबन अल्फाज के मानी हमें आते हैं। हादा यौमुन आसीब, ये मुश्किल दिन है, यौम का माना दिन, आसीब माने मुश्किल। हाजा गुलाम, ये लड़का है। हादा हलाल, ये हलाल है। और इसके सामने हमने लिखा है वहादा हराम, और ये हराम है। हादा इलाहुकुम, ये तुम्हारा इलाह है, ये तुम्हारा माबूद है, ये तुम्हारा खुदा है। हादा अदुव्वुन, ये दुश्मन है। हादा इफ्कुम मुबीन, ये खुला झूठ है। इफ्क माने झूठ। वाकई इफ्क आपने सुना होगा जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी थी, ये उसके बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया। हादा इफ्कुम मुबीन, ये खुला झूठ है। हादा सिहरुम मुबीन, सेहर आप जानते हैं जादू को कहते हैं, ये खुला सेहर है, ये खुला जादू है। हाजा बुहतानुन अजीम, ये बड़ा बुहतान है। ये हाजा बुहतानुन अजीम भी वाकई इफ्क में बयान हुआ। हादा खल्कुल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक है। हादा अज़बुन फुरात, ये मीठा पानी है। हादा मुग़तसलुन बारिद, ये नहाने की जगह है ठंडी, यानी ठंडा पानी मुराद है। हादा ज़िक्र, ये जिक्र है। वहादा हराम, और ये हराम है। मता हाज़ल वादू, मता माने कब होगा, मता सवालिया है, कलमा है, कब होगा। हाज़ल वादू, ये वादा कब पूरा होगा। हादा नुज़ुलुहुम, ये उनकी मेहमानी है। हादा यौमुद्दीन, ये क़यामत का दिन है। यौम का माना दिन होता है। हादा यौमुल फ़स्ल, ये फैसले का दिन है। हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये झूठा जादूगर है। साहिर कहते हैं जादूगर को, सेहर जादू को कहते हैं। हाजा अखी, ये मेरा भाई है। अख का माना भाई, ये का माना मेरा। वहादा मिल्हुन उजाज, और ये शदीद नमकीन है, कड़वा सा। हादा अज़ाबुन अलीम, ये दर्दनाक सजा है। अजाब माने सजा, अलीम माने दर्दनाक। हादा फौजुन, ये फौज है, जमात है। मुक्तहिमुन, घुसने वाली। हादा किताबुना, ये हमारी किताब है या हमारा खत है। हादा इफ्कुन कदीम, ये पुराना झूठ है। इफ्क माने झूठ, कदीम माने पुराना। उर्दू में भी कदीम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हादा नज़ीर, ये डराने वाला है।
اب یہاں تک ہاذا استعمال ہوا، اب ہاذہ کو دیکھتے ہیں. ہاذہ الشجرہ، یہ درخت. اب دیکھیں الشجرہ مؤنث تھا، اس کے لیے ہاذہ لائے. ہاذہ القریہ، قریہ مؤنث ہے اس لیے ہاذہ لائے. یہ بستی. ہاذہ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی. الحیاتی مؤنث ہے، ہاذہ لائے. ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی. ناقہ مؤنث ہے اس لیے ہاذہ لائے. ہاذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی. بضاعہ یہ مؤنث ہے اس لیے ہاذہ لائے. ہاذہ امتکم، یہ تمہاری امت. اب یہاں پر بھی امہ مؤنث ہے اس لیے ہاذہ. ہاذہ تذکرہ، یہ نصیحت کا سما ہے. تذکرہ کا لفظ قرآن کریم میں جہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نصیحت کا سما، اور جدید عربی میں ٹکٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. تذکرہ معنی یہاں پر یاد دہانی یا نصیحت. ذالک تخفیف، یہ نرمی ہے، وہ نرمی ہے. اب یہاں پر ہاذا اور ہاذہ کے بعد ذالک آ گیا. قرآن میں ذاکا کی مثالیں نہیں ہیں. ذالک تخفیف، وہ نرمی ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب. ذالک متاع، وہ ساز و سامان. ذالک الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ تقدیر ہے العزیز العلیم، اس ذات کی جو بڑی زبردست اور علم والی ہے. ذالک الخزی العظیم، وہ بڑی رسوائی ہے. ذالک خیر، وہ بہتر ہے. ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم ہے، وہ عیسیٰ ہیں جو بیٹے ہیں مریم کے. ذالک یوم التغابن، وہ خسارے کا دن ہے. تغابن مانے خسارہ. ذالک الدین القیم، وہ مضبوط دین ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ، وہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، ان کی سزا ہے. جزا کا معنی سزا اور بدلہ. اعداء کا معنی دشمن، یہ عدو کی جمع ہے، پیچھے گزرا ہے یہ لفظ. ذالک جزاؤہم جہنم، وہ ان کی سزا جہنم ہے، وہ ان کی سزا ہے جہنم کی صورت میں. جزا کا معنی سزا. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے. ذالک رجع بعید، وہ لوٹنا ہے بہت دور کا. ذالک یوم الخلود، وہ ہمیشگی کا دن ہے. ذالک یوم الخروج، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے. ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے. ذالک امر اللہ، وہ اللہ کا امر اور حکم ہے. اب یہاں تک ذالک کی مثالیں تھیں. اب تلکا مؤنث. تلکا امہ، وہ ایک امت ہے. تلکا عشرۃ کاملہ، وہ مکمل 10 ہیں. عشرہ مانے 10، کاملہ مکمل. تلکا آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. تلک الجنہ، وہ جنت ہے. تلک آیات القرآن، وہ قرآن کریم کی آیات ہے. یہ امثلہ تھیں قرآن کریم سے. اب آخر میں ہم الحوار، ڈائلاگ، حوار کرتے ہیں. حامد اور خالد کے درمیان حوار ہے. حامد السلام علیکم. خالد وعلیکم السلام. حامد ما هذا؟ خالد هذا حاسوب. حامد وما هذه؟ خالد هذه شاشہ. حاسوب کا معنی کمپیوٹر، شاشہ کا معنی سکرین یا LCD. حامد وما ذاک، اور وہ کیا ہے؟ خالد ذاک شاحن، وہ چارجر ہے. شاحن کا معنی چارجر. حامد وما تلک، اور وہ کیا ہے؟ خالد تلک لوحۃ المفاتیح، وہ کی بورڈ ہے. لوحہ مانے بورڈ، مفاتیح مانے مفتاح کی جمع ہے، چابی یا کیز. حامد شکرا، تھینک یو. خالد عفوا، ویلکم. یہ حوار آپ نے یاد کرنا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. ما هذا؟ هذا حاسوب.
وما هذه هذه شاشة وما ذاك ذاك شاحن وما تلك لوحة المفاتيح شکرا عفوا حاسوب مذکر تھا ہاذا لائے اور شاشہ مؤنث ہاذہ لائے شاحن مذکر ذاکا لائے اور لوحہ مؤنث تلک لائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ